बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न भारा रेस कोर्स पार्क लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, मेरे चारों तरफ नहायत खूबसूरती से सजे हुए खाने के स्टॉल्स हैं और मैं जिस स्टॉल पे खड़ा हूँ ये लाहौर की ख़ास डिशेज़ हैं। ये कहते हैं जी भटूरा है, समोसा है और साथ सब्ज़ चाय है। और मेरे पास इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं स्टॉल पे, मेरे बाएं हाथ ये कतलम्मा है, एक बड़ी सी रोटी जिसके ऊपर बेसन वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लगाई हुई हैं, और ये छोटी सी रोटी जो है ये इसको भटूरा कहते हैं। ये साथ अचार है गाजर का और मिर्च का और आम का, और ये चने हैं ख़ास तरीके से पकाए हैं, इसको चिकड़ छोले कहते हैं। हमारे नाजरीन के लिए ये दिलचस्पी का बायस होगा जो यूरोप में है कि ये चने हैं लेकिन उनको इस तरह पकाया गया है कि ये चिकड़, मतलब जिसको कीचड़ कहते हैं उर्दू में, उस तरह हो गया, इसको चिकड़ छोले कहते हैं। और ये है हमारे मूली, गाजर, बंद गोभी और सैलेड के जो पत्ते हैं उनको मिक्स करके एक सलाद बनाया गया है। यह भी हमारी यहाँ की ख़ास जो है डिश है। तो ये जो भटूरे बनाते हैं उस्ताद जी, हम उनसे ज़रा बात करेंगे। ज़रा आयो जी मेरे कोल। थोड़ा नाम की है जी? मेरा नाम जी बशीर मोहम्मद। तुसी कदों तो काम कर रहे हो? जी को मैंने कोई कम से कम कोई 60-70 साल हो चले जी इस काम ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੰਮਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਸਾਲੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਸਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। देखो जी 1 किलो चीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਸਟਾਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਕੋਈ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ 2-4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕੋ ਲੌਂਗ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। जिस साहबान ने शाम ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ 12-1 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ तो इस तरह 2 ਚਮਚੇ 4 ਕੱਢ ਕੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਸਾਹਬਾਨ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ तो ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਭਟੂਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਣੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਭਟੂਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ? ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਖਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੇੜਾ ਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਧਨੀਆ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਪਾਣੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟ ਕਲਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੂਲ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਅਜਵਾਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਹਲਦੀ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਠੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ जिस तरह गाहक की रूटीन हो उसके मुताबिक ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਬਗੈਰ ਘਿਓ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਾਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਮਕ ਔਰ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਲਟ ਲਈਦਾ, ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸੋਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸੋਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਚਾਰ ਖਾਦਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਚਾਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੰਮ नहीं है, हजम ही नहीं होना। हाँ जी, अचार। अच्छा जी, मेहरबानी, शुक्रिया नाजरीन। ये था लाहौर का एक रिवायती खाना, भटूरे, समोसे और सब्ज़ चाय का स्टॉल। सब्ज़ चाय तो इस वक्त हमें यहाँ नजर नहीं आ रही, पीछे है जी, पीछे। तमाम बाकी चीजें हमने आपको दिखा दी हैं। ये कतलम्मा है, ये भटूरे हैं और ये चिकड़ छोले हैं। नाजरीन, इस वक्त हम जिस स्टॉल पे हैं इस पे यह भी लाहौर की खास डिशेस का स्टॉल है। लाहौर के खास खाने यहाँ पे मिलते हैं। इस वक्त आप जो चीज़ देख रहे हैं ये कतलम्मा एक इन्होंने तला है और वो कढ़ाई से बाहर निकाला है, इसको कतलम्मा कहते हैं। ये एक रोटी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लगाई गई हैं और इसको तला गया है।
इसके अलावा इस स्टॉल पे एक ख़ास चीज़ जो मौजूद है, जो पाकिस्तान की, पंजाब की एक रवायती चीज़ है, जो इस वक्त और दूसरे शहरों में भी, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी मुतारफ़ करा दी गई है। इसको कहते हैं जलेबी। ये बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है, मीठी है, पाइप लगता है जिसमें शीरा भरा हुआ है। इसकी मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, सिर्फ खा के इसको देखा जा सकता है कितनी लजीज चीज़ है। इसके साथ एक और ख़ास चीज़ है जिसको अंदरसा कहते हैं। अंदरसा है, अंदरसा क्या है, इसके बारे में हम जो इस स्टॉल पे मौजूद हैं उनसे पूछते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਜੀ, ਬਿਸ਼ਾਰਤ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਦਰਸਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮਿੱਠੇ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕੌੜੇ ਜੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਖੋਇਆ, ਚੀਨੀ ਅੱਛਾ ਔਰ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਘਿਓ ਦੇ ਤਲ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਖੋਇਆ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਖੋਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਇਆ? ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਅਸਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸਰ ਪਾ ਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਡੇਢ ਪਾ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ। ਡੇਢ ਪਾ ਖੰਡ ਪਾਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਾਕ ਹੋਇਆ ਪਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰਸਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਖਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਸੰਤ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ बसंत के नाले खास तौर पे। बिल्कुल बसंत के नाल। यानी मौसम बहार के जो त्यौहार पंजाब में उनमें एक बड़ा मशहूर त्यौहार बसंत का है। तो बसंत के त्यौहार के साथ अंदरसे की खास मुनासबत है। तो अंदरसे को बसंत के त्यौहार के साथ ही खाया जाता है। यानी जब बसंत का त्यौहार मनाते हैं, पतंगबाजी हो रही होती है, तो लोग बाजार से अंदरसे लेके खरीद के खाते हैं। तो इसको मीठा पकौड़ा भी कहते हैं। जी जी। दूसरी चीज़ है जी जलेबी। ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਲੇਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਲੇਬੀ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੀਨੀ, ਮੈਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਘੀ ਤੇ ਰੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਲੇਬੀ ਨੂੰ ਤਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਮ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਟੂਰੇ ਜਾ ਜਾ नाजरीन, इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये पंजाब के खास रवायती खाने सरसों का साग, मक्खन और मकई की रोटी का स्टॉल है। इस वक्त स्टॉल पे दो खवातीन मौजूद हैं जो मकई की रोटियां बना रही हैं। साग इन्होंने तैयार करके रखा है और मक्खन के साथ ये साग अपने ग्राहकों को दे रही हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ। बीबी, तुसी मैनू दसो कि तुसी ये स्टॉल कदों तो लाया इत्थे? दसो जी। जी, तुसी दसो। 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए ने। हाँ जी। तो तुसी की पकांदे पे इत्थे? सरसों का साग, मक्खन, मकई की रोटी ताजा। उर्दू में बोल रही है ना, पंजाबी दसो मैनू। पंजाबी बोल के जी। ये जी मकई की रोटी है। आप ये मुझे बताएं कि मकई की रोटी ये मकई की रोटी किवें बनती है? ये मकई की रोटी मकई आटा पीस के बनता है। अच्छा, कैसे बनता है जी? चक्की में। नहीं, आटा तो चक्की में बन गया, रोटी कैसे बनाते हैं? भून के। एक रोटी बना के दिखाएं जी। नहीं है ये जी इन्होंने गूंदा हुआ मकई का आटा लिया, उसका ये पेड़ा बना रही हैं। ये जब पेड़ा तैयार हो जाएगा तो फिर इसको ये रोटी की शक्ल देंगी। हाँ जी। तो इस वक्त इन्होंने एक रोटी जो है वो तैयार करके उसकी शक्ल बना के रखी हुई है। जरा ये उठा के मुझे दिखाएं। ये देखें जी, एक रोटी इन्होंने, छोड़ दें इसके ऊपर, ये रोटी एक जो है इसकी शक्ल जो है वो बनी हुई है। ये रोटी की है, ये मकई की रोटी है। मकई की रोटी बनाना एक खासा मुश्किल काम है। हर औरत के बस की बात नहीं कि मकई की रोटी जो है वो बना सके, क्योंकि घरों में आम औरतें मकई की रोटी नहीं बना सकती। ये देहात की औरतें जो मकई की रोटी बना लेती हैं। तो ये मकई की रोटी बनी हुई है और ये इस वक्त एक रोटी जो है वो तवे पे पकाई जा रही है। छोटी सी रोटी है, नहायत खूबसूरत पीले रंग की, और इसको घी की जो तमाज़त है उसने सुनहरा कर दिया है। तो ये खूबसूरत रोटी जो है, और ये एक तैयार रोटी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक नहायत खूबसूरत मकई की तैयार रोटी। तो ये हमारे पंजाब का ख़ास रवायती खाना है। दिसंबर के महीने में जब सख्त सर्दी होती है तो सरसों के जो पत्ते हैं वो निकलते हैं, तो उन पत्तों को लेके काट के उनको उनको पीसा जाता है और साग तैयार किया जाता है। इसमें मक्खन रखा हुआ है इन्होंने, और ये इसमें साग है। ये देखें जी, जो साग है इन्होंने तैयार किया हुआ है। इसमें सुर्ख मिर्च है, साग है, यकीनन इसमें बाथू भी डाला होगा इन्होंने।
तो ये नहायत खूबसूरत लजीज एक चीज़ तैयार होती है जिसको मकई की रोटी के साथ नहायत शौक से खाया जाता है। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। लाहौर के रवायती खानों के साथ साथ जश्न बहारा के मेले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़तों की नुमाइंदगी की गई है और उन इलाकों के खानों के स्टॉल्स भी यहाँ लगाए गए हैं। इस वक्त यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया है, जिस स्टॉल में हम मौजूद हैं, ये सज्जी का स्टॉल है। सज्जी बलूचिस्तान का एक नहायत मशहूर, मरगूब और नहायत ही मकबूल खाना है और सज्जी बनाई जाती है असल में दुम्बे की रान की। सज्जी बनाने का तरीका क्या है? रान को या गोश्त को लकड़ी की एक सलाख के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और उसके दरमियान में आग लगा दी जाती है और उस लकड़ी को घुमाया जाता है, उस छड़ी को थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि वो चारों तरफ से उसको सेंक पहुंचता रहे। इस तरह वो जो गोश्त होता है वो तैयार हो जाता है। इस वक्त जो सज्जी यहाँ पे तैयार की जा रही है ये मुर्गों की सज्जी है। तो सज्जी तैयार करने वाले दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ हासिल करता हूँ। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संगीन खान कोटवाल कंदारी, स्पेशल बलोची सब्जी पकाने वाला है। ये है जी स्पेशल बलोची सब्जी पकाने वाले। अपना नाम जरा दोबारा दोहरा दें। मेरा नाम है संगीन खान कोटवाल कंदारी। संगीन खान। संगीन खान साहब, लोक वारसा। आप कहाँ से आए हैं? लोक वारसा इस्लामाबाद में 3 साल उधर से काम करना है। अच्छा। और उमरी में खैबर होटल, अच्छा, माल रोड उधर से काम करता है 2-3 साल। अच्छा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। अच्छा ठीक है। ये बताते हैं जी कि इनका नाम संगीन खान है और ये इससे पहले लोक विरसा में 3 साल तक स्टॉल लगा चुके हैं और कहते हैं मैं बहुत अच्छी सब्जी बनाता हूँ। तो इनकी बनाई हुई सब्जी इस वक्त मेरे पास है, मैं चख के देखता हूँ कि ये कैसी है। नाज़रीन वाह, ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार सब्जी है। हम यकीनन दूसरों से भी कहेंगे कि ये सब्जी ज़रूर खाएं। नमक ज़्यादा है। ये गर्दन है भाई, नमक कितनी ज़्यादा है, मन मसाले से डालता है। मेरे मसाला है अदरक, नींबू, सिरका और बकाया और मिसाला, उसको मिक्स करना है। वो पानी बाहर से नीचे आता है। अच्छा। गर्दन के साथ इधर से नमक है। अच्छा अच्छा। नमक थोड़ा पानी नीचे आता है। ये गर्दन की बोटी थी, इसमें नमक कदरे तेज था। कहते हैं जो मैंने मिसाले हैं वो सारे इसके अंदर भरे हुए हैं और वो उसके अंदर भरने की वजह से वो सारा नमक नीचे आ गया, तो वो बोटी खासी नमकीन थी। बाकी गोश्त बहुत मीठा है, बहुत जायका वाला गोश्त है। बाकी गोश्त बहुत अच्छा गोश्त है। अच्छा। सिर्फ गर्दन थोड़ा नमक है, उसकी शिवा से है कि ऊपर से पानी नीचे आता है। नाज़रीन, सज्जी के बारे में आपको मैं बताता चलूं कि सज्जी बलूचिस्तान का एक ख़ास डिश इसलिए भी है कि जब बलूचिस्तान में लोग रात को बकरे ज़िबा करते हैं तो फिर रात को वहाँ पे सरे शाम ही उनकी रानों को इसके ऊपर चढ़ा के लकड़ी के ऊपर और उसके गिर्द आग जला दी जाती है और उस दौरान वो गाने गाते हैं, वहाँ जश्न होता है और जब फिर 2-3 घंटे के बाद पक जाती है तो फिर लोग बहुत करते हैं और उसको खाते हैं। तो ये थी जी सज्जी, बलूचिस्तान का एक ख़ास खाना। और इसके साथ हम आपको अगले स्टॉल पे लिए चलते हैं। इस वक्त हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं यहाँ पे सब्ज़ कश्मीरी चाय का स्टॉल लगाया गया है। सब्ज़ कश्मीरी चाय लाहौर की एक ख़ास चीज़ है, लाहौर की एक ख़ास मशरूब है। सर्दियों में लोग बड़ी कसरत से और बड़ी रग़बत से पीते हैं। इस चाय में एक ख़ास किस्म की पत्ती इस्तेमाल की जाती है, दूध खालिस होता है और बीच में मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे, पिस्ता, बादाम वगैरह डाल दिया जाता है। और कश्मीर में तो ये नमकीन पी जाती है, लेकिन लाहौरियों ने इसको नमकीन और मीठा कर दिया है, यानी इसमें नमक भी डाला हुआ है और इसमें कदरे थोड़ा सा मीठा भी डाला हुआ है। तो ये एक मिक्स किस्म की जो चीज़ है वो बन गई है, लेकिन बगैर, चूँकि स्टॉल पे बिकती है इसलिए बगैर चीनी के होती है। चाहे कोई चीनी डाल ले, चाहे कोई नमक डाल ले। तो स्टॉल पे जो चाय बनाने वाले दोस्त हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? ख्याल मोहम्मद जी। ख्याल मोहम्मद साहब, ये इसमें जो मैंने चीज़ें बताई ठीक बताई हैं ना? जी सही बताई। पत्ती कौन सी इस्तेमाल करते हैं? असल बात पत्ती जी, इसका अपना पत्ती होता है। अच्छा, क्या नाम होता है उस पत्ती का? क्या नाम है उसका? आओ जरा, ये उस्ताद है। ये जी उस्ताद जी बताएं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? इलियास। अच्छा जी, बताएं कि क्या कौन सी पत्ती इस्तेमाल होती है? सब्ज़ पत्ती। आम सब्ज़ पत्ती? हाँ जी, आम सब्ज़। आप लोग आम करते हैं, कश्मीरी पत्ती नहीं इस्तेमाल करते? नहीं जी। अच्छा, तो और क्या क्या डालते हैं इसमें? दूध खालिस डालते हैं कि खुश्क दूध डालते हैं? खालिस दूध। रंग तो नहीं डालते गुलाबी करने के लिए? सिर्फ फेंटने से गुलाबी हो जाती है? जी ठीक है। तो ये कितने का कप दे रहे हैं आप? 10 रुपये। इस वक्त मैं लाहौर के जश्न बहारा के एक स्टॉल पे मौजूद हूँ। ये दही भल्ले और फ्रूट चाट का स्टॉल है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, किस तरह बनाई जाती है और क्या होता है, इस वक्त मेरे साथ स्टॉल पे काम करने वाले दोस्त मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मकसूद। मकसूद साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो आप फ्रूट चाट या दही भल्ले की एक प्लेट बनाते हैं, सबसे पहले बताएं दही भल्ले की जो प्लेट बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं? भल्ला डलता है, आलू पकौड़ियाँ, चने, इस तरह गिन के बताएं ना।
पहले इसमें भल्ला डलता है? पहले भल्ला डलता है, फिर आलू डलते हैं, पकौड़ियाँ डलती हैं, चने डलते हैं, सलाद डलती है, मसाला। अब मुझे बताने दें, ये बताते हैं जी कि सबसे पहले भल्ले डलते हैं। भल्ले इन्होंने दही में डाल के रखे हुए हैं। ये इसका चमचा किधर है? ये जी भल्ला है जो इन्होंने दही में डाला हुआ है। इसको ये माश की दाल का ही बनता है और आजकल बेसन का भी बना देते हैं। और इसके बाद ये कहते हैं इसमें पकौड़ियाँ डलती हैं जी। ये इन्होंने पकौड़ियाँ हैं और इसमें आलू भी मिक्स किए हुए हैं। पकौड़ियाँ और आलू भी डलती हैं, चाट का ख़ास उनसर है। तो ये एक है। इसके बाद इसमें डलती है जी चटनी, 3 किस्म की। एक है खट्टी चटनी, ये नमक मिर्च वाली है, इसमें खटास भी है। दूसरी चटनी इसमें डलती है जी दही की, जिसमें इन्होंने धनिया, पुदीना और दही और सब्ज़ मिर्च को पीसा हुआ है। तीसरी चटनी इसमें मीठी डलती है, ये होती है जी खुबानी की चटनी बनाते हैं ये आमतौर पे, या आलू बुखारे की भी बना देते हैं बाज़ औक़ात, ये डलती है। चौथी चीज़ इसमें डालते हैं जी मूलियाँ, गाजरें, चुकंदर और टमाटर, ये सलाद डालते हैं जी इसमें। और ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं तो फिर एक भल्ले की प्लेट बनती है जिसको लोग चटखारे लेके खाते हैं। मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ये लें जी आप। और दूसरी चीज़ जो इस स्टॉल पे मौजूद है वो है जी फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में आमतौर पे ये फ्रूट सैलेड समझ लें इसको, पाकिस्तानी तर्ज का। इसमें अमरूद हैं मेरे सामने, सेब हैं, ये इन्होंने मौसमी रखी हुई है, माल्टे हैं, कोई अच्छी शक्ल के नहीं है, बहरहाल मौसमी है, और केले हैं। और यहाँ पे जो नीचे रखा हुआ है ये है मिक्स करके फ्रूट रखा हुआ है। इसमें ये जितने फ्रूट मैंने बताए, अमरूद, प्याज, वो है क्या कहते हैं, सेब है, केला है और अनार का भी कोई कोई दाना है, और चंद दाने बादाम के भी सजावट की गरज से ऊपर रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर भी ये चटनियाँ डाल के और ये जो है ये फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट की एक प्लेट जो है वो तैयार की जाती है, जिसको लोग मज़े से खाते हैं। और लाहौर में अनारकली में बानो बाज़ार की चाट बहुत मशहूर है। अगर आप लाहौर आएँ तो बानो बाज़ार ज़रूर जाएँ और वहाँ की चाट खाएँ। इस वक्त हम जश्न बहारा में आपसे बात कर रहे हैं। अगले स्टॉल पे लिए चलते हैं आपको। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ये गोलगप्पों का स्टॉल है। नाजरीन, इस वक्त आपको पस मंज़र में बहुत बुलंद आवाज़ में म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी। ये रेस कोर्स पार्क में मेला है, मेले का माहौल है, शाम भीग रही है, शाम हो रही है, लोगों का हजूम दर हजूम रेस कोर्स की तरफ रवान दवा है। चारों तरफ लोग ही लोग हमें नज़र आ रहे हैं और इन लोगों की एंजॉयमेंट के लिए मुख्तलिफ दुकानों ने मुख्तलिफ जगहों पे मौसीकी का एहतमाम कर रखा है। लोग इसको सुनते भी हैं, कुछ नागवारी से भी देखते हैं, लेकिन बहरहाल सब चलता है। मेले का माहौल है, मेले का समा है। और मेरे साथ बिल्ला गोलगप्पों वाला। बिल्ला जी, आप हमें ये बताएं कि ये जो गोलगप्पे आप बनाते हैं ये आप कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 15-16 साल से कर रहे हैं। ये जी कहते हैं मैं ये काम 15-16 साल से कर रहा हूँ। कौमी सनती नुमाइशों पे करते हैं और खालिस इमली का हम खट्टा बनाते हैं जी। और हर पूरे पाकिस्तान की नुमाइशों पे हम ये सौदा लगाते हैं और अच्छा और खालिस इमली का सौदा लगाते हैं। अच्छा जी, ये कहते हैं जी कि हमारा सौदा खालिस इमली का होता है और ये गोलगप्पा होता है। इसमें आप पानी डालें ना वो, ताकि मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि गोलगप्पा खाया कैसे जाता है। नाजरीन, इस घड़े में इन्होंने ये इमली का पानी निकाला है, इसको ये खट्टा कहते हैं। ये जो इमली का पानी है ये लिया जाता है, ये गोलगप्पा है, इसमें कोई सुराख नहीं है। ये आटे की एक टिकिया होती है जिसको तला जाता है, ये फूल जाती है। इसमें उंगली से ऐसे सुराख करते हैं। इसमें थोड़े से चने डालते हैं, 2-4 दाने चने डाल दिए हमने इसमें। इसके बाद इसको इससे भरा जाता है, पानी से भर लिया और इसको यूं करके नाज़रीन, बहुत मज़े का लेकिन बहुत खट्टा, गला खराब करने के लिए एक नहायत मौसर चीज़ है। ताहम लोग चटखारे ले लेके इसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और जो पानी बच जाता है वो यूं करके पी लेते हैं। और ये कहते हैं जी कि ये आइटम जो है ये खालिस औरतों का आइटम है, औरतों के लिए तैयार किया है, औरतों को चटखारा पसंद होता है। बिल्ला जी, हमें ये बताएं कि एक गोलगप्पा जो बनाते हैं आप, इसमें आटा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसमें आटा हम लाल इस्तेमाल करते हैं, मोटा, लाल मोटा आटा जी। और उसको नरम गूंदना है कि सख्त गूंदना है? उसको बिल्कुल जैसे घर में औरतें आटा गूंदती है ऐसे गूंदते हम।
और उसको कितनी पतली टिकिया बनानी है? जैसे पूड़ी का आटा होता है ना, ऐसे ही हम उसको लाते हैं। अच्छा, जैसे उसमें थोड़ी सी आप ऑयल भी डालते हैं? कुकिंग ऑयल से हम तलते हैं इसको तलते हैं कुकिंग ऑयल में। हाँ जी। और तो आप बहुत अच्छा, आपका इसका जायका था बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़े अच्छे बने हुए हैं। और ये आप एक प्लेट जो है ये 24 इसमें होते हैं? एक प्लेट में 12 होते हैं। 12 होते हैं। कितने में देते हैं एक प्लेट 15 रुपए में हम देते हैं। अच्छा जी, आप एक प्लेट 15 रुपए में देते हैं। और दर्जन होते हैं, इसमें हम दही भी भरते हैं। अच्छा, दही भी भरते हैं? दही भी भरते हैं, मीठी चटनी भी भरते हैं हम इसमें। तो फिर ये 15 रुपए की प्लेट देते हैं? प्लेट देते हैं जी। कहते हैं जी कि इस गोलगप्पे में ये दही और मीठी चटनी भर के 15 रुपए की प्लेट देते हैं जी। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत। नाज़रीन, इस वक्त जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं ये स्टॉल है हलीम का, चिकन बिरयानी का और सब्ज़ चाय का। तो इससे पहले कि मैं आपको सब्ज़ चाय की तरफ या चिकन बिरयानी की तरफ लेके जाऊं, आपको हलीम का तारुफ कराता हूं। ये जी हलीम है। बनाने वाले कौन है जी? जी शौकत साहब। ये जी उस्ताद शौकत मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं जी इसमें क्या क्या डालते हैं? जी इसमें मुर्गा होता है। हाँ जी। ये दलिया होता है जी। ये मुर्ग हलीम है? हाँ जी, मुर्ग हलीम है। मुर्ग होता है, दलिया होता है। हाँ जी बिल्कुल। और क्या? और मसाले होते हैं। मसाले कौन कौन से? दाल चने की दाल होती है, माश की दाल होती है, मूंगी की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, मसूर की दाल होती है। और अच्छा, ये कितनी कितनी मिकदार होती है? जी आधा पाइया जितने को बनाना है। नहीं, मतलब है कि मैंने 5 किलो हलीम बनाना है। 5 किलो बनाना है तो आप आधा दाल बना लें। आधा दाल, यानी आधा पाव मैंने मसूर की दाल ले ली, आधा पाव माश की दाल ले ली, आधा पाव मैंने ले ली चने की दाल। चने की तो है दी आधा किलो। आधा किलो, अच्छा। आधा पाव मैंने ले ली उसकी दाल, क्या कहते हैं, मूंगी की दाल। अच्छा, चने की आधा किलो चने की दाल ले ली और उसमें डाल लिया दलिया। कितना? दलिया पा 2 पैकेट होते हैं। 2 पैकेट आधा किलो के, पाइया के आधा किलो दलिया डाल दिया। चावल कितने डालने हैं? चावल नहीं डालने। आपने चावल नहीं डालने। मुर्गा कितना डालना है? मुर्गे 2 पाले आप। 2 मुर्गे डाल दिए। इसके बाद इसको पकने के लिए रख दिया। सारी रात पकता रहा। और बीच में खूब चमचा लाना है। चमचा आपने लाया इस देग के अंदर। बिल्कुल। जब चमचा हिलता रहा, सारी रात पकता रहा, तो फिर क्या हुआ? सुबह तक ये हलीम बन गई। हलीम के माने होता है जी बड़ा ऐसा खाना जिसको हलीम से खाया जाए। हलीम तवा लोग खाते हैं जी इसको। तो ये बड़ा नरम सा खाना है, बड़ा लोगों को मरगूब है। कहते हैं जी हलीम की इब्तिदा कैसी हुई? कहते हैं जी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे एक देग रखी गई, जिस मुरीद के पास जो कुछ होता था उसमें ला के डाल देता था। किसी के पास गोश्त हुआ, उसने गोश्त डाल दिया, किसी के पास दालें डाल दी, तो जो हिस्सा पक जाता था वो देग से निकाल लिया जाता था। तो इस तरह ये जी हलीम बननी शुरू होगी। बहरहाल हलीम लाहौर की एक खास डिश है। खाई किस चीज़ से जाती है जी? नानों से जी। ये जी नान के साथ हलीम खाते हैं। तो नान और हलीम जो है ये खा के लोग एंजॉय करते हैं और लाहौर का ये खास खाना है। और किस इलाके का सबसे मशहूर हलीम है लाहौर में? जी भाटी गेट में मशहूर है। अच्छा जी, भाटी गेट लाहौर का जी। पाटी गेट, ये जो भाटी गेट है ना, इसको हम कहते हैं पाटी गेट लाहौर का। ये बड़ा मशहूर है, उसका ये हलीम है। तो आप कहाँ पर बनाते हैं? हम तो इधर ही बनाते हैं जी। अच्छा, आजकल इधर ही बनाते हैं जी। चलें जी, ठीक है। दूसरी डिश है जी इनकी यहाँ पे बिरयानी। ये जी कहते हैं हमारे पास चिकन बिरयानी है। तो चिकन बिरयानी मैं आपको दिखा देता हूँ। चिकन भी है इसमें और चावल भी हैं। तो ये ख़ास तरह की बनी एक डिश है चावलों की और चिकन की। पुलाव से ज़रा बेहतर चीज़ होती है, इसको चिकन बिरयानी कहते हैं जी। शुक्रिया जी उस्ताद साहब आपका बहुत बहुत, आपने हमें टाइम दिया, जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, इस वक्त जिस स्टॉल पे हम मौजूद हैं ये सज्जी का स्टॉल है। सज्जी बलूचिस्तान की एक ख़ास डिश है, बलोचों की ख़ास डिश है। इसको पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के हवाले से बेहद पसंद किया जाता है। लोग बड़ी रग़बत से खाते हैं। पहले सिर्फ बलूचिस्तान में मिलती थी, अब बलोचों की कोशिशों से, मेहनत से, उनकी कारीगरी से पूरे पाकिस्तान में ये आम हो गई है। पहले लोग सज्जी खाने बलूचिस्तान जाया करते थे, अब लोग सज्जी खाने लाहौर आते हैं। इस वक्त जश्न बहारा में तफ्तान बलोची सज्जी स्टॉल पे हम मौजूद हैं। ये एक नहायत खूबसूरत यहाँ सज्जी तैयार की जा रही है और सज्जी 2 तरह की तैयार हो रही है। एक सज्जी यहाँ पे मुर्ग की तैयार हो रही है, दूसरी सब्जी जो है ये मटन की है। इसको यार खाली करो ना ऊपर से। यार क्या कर रहे हो? ये सब्जी दे। सब्जी बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि मुर्ग को या रान को मसाला वगैरह लगा के और उसको एक सलाख पे चढ़ा दिया जाता है। दरमियान में आग जला दी जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको इस तरह घुमाया जाता है ताकि आग बराबर की चारों तरफ से उसको मिलती रहे और वो गोश्त जो है वो अच्छी तरह पक जाए। और ये जो इन्होंने बनाया हुआ है मुर्ग, इसके अंदर इन्होंने कुछ मसाले भरे हुए हैं, जो नमक वगैरह लगाया है।
जो वो सारे का सारा इस गोश्त में रच जाता है। तो नहायत धीमी आंच में पकने वाला गोश्त और नहायत लजीज होता है। तो इसको जो सजी को बनाते हैं वो बलूचिस्तान के लोग होते हैं। असल में सजी की रवायत कुछ इस तरह से है कि जब रात को बलूचिस्तान में बकरा वगैरह दुम्बा कबीले के लोग ज़िबा किया करते थे, तो उस वक्त उसको ज़िबा करने के बाद उसको 4 हिस्सों में तकसीम करके उसको मसाले वगैरह लगा के सलाख पे चढ़ा के आग के गिर्द लगा दिया जाता था। और उसके बाद कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ कबीला का जश्न होता था, और 2-4 घंटों के बाद जब सजी तैयार हो जाती थी तो फिर वो लोग मिल के बैठ के खाते थे। गोया कलू जमीन का मिल बैठकर खाने का एक मंजर होता था। तो ये सजी की रवायत है, लेकिन अब ये एक सुवेनियर के तौर पे, एक डिश के तौर पे पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है और पाकिस्तान में भी ये बहुत मकबूल है। तो इस वक्त हम सजी के स्टॉल पे हैं। 2 तरह की सजी तैयार की जा रही है, एक है ये मुर्ग और दूसरा जो है यहाँ है वो है इस जगह पे रान की सजी। इस वक्त हम पेशावर नमक मंडी के मशहूर टिक्का मटन बनाने वाले और ये बनाने वाले चप्पल कबाब बनाने वाले स्टॉल पे मौजूद हैं। तो इस वक्त गर्मा गर्म चप्पल कबाब हमारे सामने तले जा रहे हैं, नहायत मज़ेदार लजीज। तो जो साहब तल रहे हैं हम उनसे तारुफ हासिल करते हैं। भाई साहब ज़रा अपना नाम बताएंगे? समीदुल्लाह जी। समीदुल्लाह साहब, समीदुल्लाह साहब आप मुझे ये बताएं कि इस चप्पल कबाब में जो आप बनाते हैं क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं? ये केमई जी, प्याज है, टमाटर है जी। गिन के बताए। ये कीमा है, केमई जी, ये टमाटर है जी, ये सब्ज मिर्च है, जी, हाँ जी, ये अनारदाना है जी, धनिया है जी, हाँ, ये जीरा है जी, ये जीरा है जी, ये लाल मिर्च है जी, अच्छा जी, प्याज भी है जी। आप बताएं आप कि सबसे पहले आप कीमा लेते हैं? हाँ जी। कीमा लेने के बाद उसमें किस तरह मिक्स करते हैं, एक मिक्स करके बताएं। ये प्याज भी जी, प्याज और कीमा पहले ये बनाते हैं जी। अच्छा। उसके मिर्च भी बनाते हैं जी। उसमें डालो ना यार। हाँ। उसको एक बनाओ टिक्की, किस तरह बनाता है? ये बन गया, कीमा लिया आपने, ये कीमा प्याज है जी। अब इसमें मिर्च डालो, ये टमाटर है जी, टमाटर डाला, हाँ टमाटर डाला जी, जीरा डाला, जीरा डाल दिया जी, अनारदाना डाला जी, सब धनिया डाला जी, सुरख मिर्च डाला, कीमा डाल दिया, कुछ और, इसके बाद पानी डाला, इसको मिक्स किया है। अच्छा मिक्स करो ना इसमें। मिक्स करने के बाद नाजरीन उन्होंने उसको थोड़ा सा दबा के और घी में छोड़ दिया। ये घी है या चर्बी है? घी है जी, असली घी है। अच्छा बिल्कुल घी, असली घी है, असली घी, डालडा घी, डालडा घी। अच्छा डालडा घी है, हाँ। उसमें आपने छोड़ दिया। हाँ जी। ये तलने के बाद जरा एक गरम गरम कबाब निकालो इसमें से, अब खाओ। इसको थोड़ा तोड़ो। लो जी, ये तो यार पूरी तरह पका भी नहीं है। पकाए जी, क्यों नहीं पकाया? बड़ा मजे का ही गरम गरम कबाब। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए हैं? पेशावर से जी। पेशावर कौन सी जगह से? हम लंडी कोतल से जी। लंडी कोतल से? हाँ जी। तो आप कितने अरसे से ये कबाब बना रहे हो? ये तकरीबन 7-8 साल हो गए जी। 70 साल? 7-8 साल जी। 7-8 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा अच्छा, 7-8 साल में आपने ये कबाब बनाने सीखे हैं? हाँ जी। अच्छे बना लेते हो? अच्छा बना। अच्छा, यहाँ आपकी सेल कैसी चल रही है? बहुत अच्छा चलती है माशाल्लाह जी। बहुत जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत लंडी कोतल के उस्ताद साहब का शुक्रिया। इस वक्त हम जिस स्टॉल पे मौजूद हैं ये भी लाहौर और पंजाब की बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की एक ख़ास डिश है। इसको कहते हैं जी सिरी और पाए। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, बकरे के पाए, ये एक चम्मच मुझे दीजिएगा, ये जी बकरे के पाए हैं। इनको साफ़ करके इनके ऊपर से बाल वगैरह अच्छी तरह उतार के बिल्कुल साफ़ करके इनको इस तरह धोया जाता है कि इसमें इसकी किसी किस्म की बू नहीं रहती, और इसको फिर खूब अच्छी तरह पकाया जाता है। और दूसरी जो है इसके साथ ये मगज़ है, इसको कहते हैं जी कि ये क्या कहते हैं आप इसको? इसमें मगज़ होता है। ये सर का वो हिस्सा है जिसमें मगज़ होता है, ये बकरे के सर का, इंसान के सर का नहीं, बकरे के सर का वो हिस्सा है जिसमें मगज़ होता है। तो इसमें से मगज़ निकाल के जब लोग आते हैं खाने के लिए तो, और ये जी बकरे की ज़ुबान है। तो
बेचारे बेजुबान बकरे की ज़ुबान इंसान खा जाता है, तो ये ज़ुबान है। तो आप जी, आपकी दुकान जो है ये सुना है लाहौर की बड़ी मशहूर दुकान है, उस दुकान का कुछ थोड़ा सा बताएं हमें कि कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से। 40 साल से जी ये लोग कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं सिरी पाए का। और इनकी दुकान फजलदीन उर्फ फज्जा लिखा हुआ है जगह जगह पे। ये बड़ी मशहूर दुकान है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इनकी दुकान मौजूद है और लोग बड़े शौक से बड़े दूर दूर से इनके सिरी पाए खाने के लिए आते हैं। और जश्न बहरा के स्टॉल में इन्होंने भी सिरी पाए लगाए हुए हैं। जश्न बहरा लाहौर रेस कोर्स पार्क में आपको हमने खाने के मुख्तलिफ स्टॉलों की सैर कराई। लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के रवायती खानों से आपका मुख्तसर तारुफ करवाया। इस मेले में एक कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ लोगों का हजूम, जौक दर जौक लोग इस मेले की सैर करने के लिए आ रहे हैं और मेले की रौनक लहजा ब लहजा, लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई मालूम होती है। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ और कुछ नौजवान जो सिर्फ इस मेले को मेले की शक्ल में सैर की गरज से आए हैं, तफरी करने के लिए आए हैं, वो भी इस वक्त यहाँ हैं। इस मेले के इस मुख्तसर से तारुफ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।